Hello, my dear student. I, Professor Harshan Nikam, welcome you all in lecture of ONS subject. Dear student, today we are going to discuss optical losses which incurred in optical fiber cable during the transmission. So let's start with our departmental vision, mission and program educational objective. Here it shows the vision of our electronics and telecommunication department. The vision is to nurture proficient diploma engineers to meet the needs of technological advancement in the field of electronics and telecommunication engineer. ये हमारे डिपार्टमेंट का विजन है। मीन्स आप इसको गोल ऑफ डिपार्टमेंट भी बोल सकते हो। तो ये जो विजन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, ये आपको बताता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में, वो हमें अचीव करना है, वो भी डिप्लोमा इंजीनियर्स तैयार करके। और इस विजन को अचीव करने के लिए हमने मिशन स्टेटमेंट सेट किया है। तो लेट्स सी द विजन मिशन स्टेटमेंट ऑफ आवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। Here I represent the mission of electronics and telecommunication department. The mission is having 5 in number for achieving the vision statement of our department. The very first mission is imparting quality education for to meet society and industry needs. यानी क्वालिटी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा, और वो भी जो सोसाइटी की नीड्स होंगी या फिर इंडस्ट्री की नीड्स होंगी उसके द्वारा। मिशन 2 स्टेटमेंट इज प्रोवाइड इथिकल एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट, यानी इथिकल और आउटकम बेस्ड एजुकेशन आपको दिया जाएगा। इनकलकेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग through innovation and co and extracurricular activities among the student। आपको क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव करने के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम अरेंज करेंगे उसके द्वारा हम विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फोर्थ मिशन इज इन्हांस द लीडरशिप स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी और हायर एजुकेशन। लीडरशिप स्किल इन्हांस करना या फिर एम्प्लॉयबल आपको बनाना या फिर हायर एजुकेशन के लिए आपको सुटेबल करना, इस तीनों क्वालिटी की द्वारा हम अपना विजन स्टेटमेंट अचीव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज सीकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे आपका बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फोकस करेंगे। सो विद दिस 5 mission statement we can definitely achieve our vision statement that we discussed in previous slide. Now we move on to program educational objectives in next slide. Here this slide shows the program educational objective, means after completing your diploma, after 2 or 3 years, this program educational objective is achieved whenever you going for in the industry or whenever you going at higher studies. The program educational objective is, very first one is PEO1. This PEO1 means program educational objective 1, that represent provide socially responsible environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problem adapting professional ethics. Second one is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environments. And third one is
solve broad-based problems individually and as a team member, communicating effectively in the world of work. So, through this program educational objective, we can definitely achieve our mission as well as our vision statement. Here, this slide shows the course outcome of our second unit and its program outcome mapping. The course outcome for this unit is measure the optical fiber cable parameter. Means after completion of this unit, we are able to achieve this outcome. Means we can measure the different parameters of optical fiber cable, and its PO mapping is here. I mentioned total 7 POs, right from PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 to PO7. I map this course outcome to these 7 number of program outcomes. See, PO1 is mapped with at a level 3. This PON is referred as a discipline knowledge. Likewise, up to PO7, I mapped here at a level 1, 3, 2 and 1. So this is related to the course outcome and program outcome mapping. Dear student, today we are going to discuss optical losses which incurred in optical fiber cable during the transmission from the unit optical losses. So let's start with some learning objective. So here this slide shows the learning outcome for our today's session. Means after completing our today's session, the learners, means you are able to explain absorption loss in detail. Absorption loss, it is the type of loss which incurred in optical fiber cable. Second one is explain scattering loss in detail. Scattering loss भी आप explain कर सकते हो. Describe the different types of fiber losses, and जो भी टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं उसको आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो फाइबर लॉसेस के रिगार्डिंग. So now here in this slide we will discuss the losses which incurred in optical fiber cable. The very first important loss is absorption loss. Absorption loss generally occurred while the optical fiber cable is manufactured. मतलब जब भी ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चर्ड होता है तब प्रॉपरली अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ या फिर मैन्युफैक्चरिंग की कुछ गलती के कारण ऑप्टिकल फाइबर केबल जो ग्लास मटेरियल से बना हुआ रहता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी, अगर एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी अगर ऐड होती है तो दैट कॉजेज और इंफॉर्मेशन लॉस. मतलब हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो ग्लास मटेरियल से बनेगा और उस ग्लास मटेरियल से हम लाइट इंफॉर्मेशन पास करने वाले. तो अगर हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो, उसमें कुछ इम्प्योरिटी अगर ऐड होती है वाइल इन मैन्युफैक्चरिंग, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो सकता. अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा तो अपना इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है. दैट लॉस इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन लॉस. ओके, अभी एब्जॉर्प्शन लॉस क्या है वो वन बाय वन हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे. सी, एब्जॉर्प्शन लॉस इज रिलेटेड टू द मटेरियल कंपोजिशन एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ फाइबर. जैसे कि मैंने बोला कि जब भी ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चर होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी अगर ऐड हुई जो हमें नहीं करनी थी वाइल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑप्टिकल फाइबर केबल, या फिर कुछ फैब्रिकेशन प्रोसेस अगर गलत हुई तो उसके वजह से एब्जॉर्प्शन लॉस
आ सकता है। मीन्स एब्जॉर्प्शन लॉस इज टोटली रिलेटेड टू द मटेरियल कंपोजिशन एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस ऑफ फाइबर। Absorption loss result in dissipation of some optical power as a heat in the fiber cable. Absorption loss अगर होता है ड्यू टू सम इनपरफेक्शन फाइबर या फिर मटेरियल कंपोजिशन के वजह से, तब ऑप्टिकल फाइबर के केबल के अंदर जो ऑप्टिकल पावर रहेंगी वो हीट करके डिसिपेट होंगे फाइबर केबल के अंदर। ओके, ये सभी को समझ में आया? मतलब एब्जॉर्प्शन लॉस जो मटेरियल कंपोजिशन या फिर फैब्रिकेशन प्रोसेस अगर बराबर नहीं हुई उसके कारण अगर आता है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है। Although glass fibers are extremely pure, some impurities still remain as a residue after purification. अभी ग्लास फाइबर जो फाइबर केबल है वो ग्लास से अगर बनते हैं तो वो प्योर तो है, लेकिन स्टिल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद भी उसमें कुछ इम्प्योरिटी रह सकती है जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से बाहर ना निकले। देन द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय दीज इम्प्योरिटीज डिपेंड ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन एंड लाइट वेवलेंथ। तो ये जो इम्प्योरिटी जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद भी ना निकले, ये इम्प्योरिटी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन के कारण फॉलो नहीं हुई। इसलिए यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन जो लाइट के फॉर्म में है वो लॉस हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इम्प्योरिटी का कितना एब्जॉर्प्शन रहेगा वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट और वेवलेंथ के ऊपर। सो दिस three is very important point related to the absorption loss. In previous slide हमने important topic या फिर important point के बारे में पढ़ा absorption loss के बारे में कि किस तरह से absorption loss आता है by material composition और imperfection of fiber अगर होता है तो उसके कुछ दो टाइप्स हैं। वेरी फर्स्ट टाइप्स इज इंट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज एक्सट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन। इंट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ इनर इम्प्योरिटीज़ के कारण जो कॉज होगा एब्जॉर्प्शन का, वो इंट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन, और एक्सट्रेंसिक मतलब कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी के कारण अगर होता है तो वो रहेगा एक्सट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन। दैट टू टाइप्स आर डिटेल अवेलेबल इन नोट्स, यू जस्ट रेफर दिस इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नोट्स। Now here we discuss the second loss or second type of loss which incurred during the transmission of optical fiber communication. The second loss is named as scattering loss. अभी scattering loss means आप जनरली हम scattered ये वर्ड यूज़ करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ। मीन्स अगर सब कुछ कलेक्टिव कुछ क्वांटिटी हमारे पास होंगी जिसको हमने अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन्स वही क्वांटिटी हम बोल सकते हैं कि हमने स्कैटर्ड की। सो हियर दिस स्कैटर्ड इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर लाइट हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर इसमें अगर फॉलो नहीं होता हो, प्रॉपर वो वेवलेंथ या फिर प्रॉपर डेंसिटी बोलिए अगर वो फॉलो नहीं करता होगा, वो अगर स्कैटर्ड होता होगा, तो स्कैटर होने से हमारी इंफॉर्मेशन जो लाइट के फॉर्म में है वो क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर लॉस इज कॉल्ड एज अ स्कैटरिंग लॉस। सो वन बाय वन वी डिस्कस some important points regarding this scattering loss. Now this scattering loss is also having subtypes, that is we will discuss in further slides. Here first of all we see some important points. Here basically scattering loss are caused by the interaction of light with density fluctuation within a fiber. यानी स्कैटरिंग लॉस किस वजह से आता है, तो इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद डेंसिटी फ्लक्चुएशन विद इन द फाइबर। मतलब
मान लीजिए कि हमारे पास बंच ऑफ लाइट है, वो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, बंच ऑफ सिग्नल है, जैसे मल्टी मोड फाइबर, इसमें ज़्यादातर ये स्कैटरिंग लॉस आता है, जो हमने फाइबर के टाइप को देखे हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड, मल्टी मोड। तो मल्टी मोड में ये ज़्यादातर लॉस आएगा। तो लाइट इंटरेक्शन की वजह से अगर डेंसिटी में फ्लक्चुएशन होगा तो उसी की वजह से ये लॉस आ सकता है। डेंसिटी चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑप्टिकल फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। कब डेंसिटी चेंजेस होंगे? जब ऑप्टिकल फाइबर प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगा तब। नेक्स्ट, इसके सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स है लीनियर स्कैटरिंग लॉस, यानी इसमें दो टाइप्स है, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर स्कैटरिंग। तो लीनियर स्कैटरिंग लॉस किसको बोलेंगे? तो लीनियर स्कैटरिंग ऑकर्स व्हेन ऑप्टिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डोमिनेंट मोड ऑफ ऑपरेशन टू द एडजेसेंट मोड। यानी लीनियर स्कैटरिंग लॉस कब आएगा? जब ऑप्टिकल एनर्जी यानी लाइट एनर्जी ट्रांसफर होगी उसके डोमिनेंट मोड से उसके एडजेसेंट मोड के तरफ, तब लीनियर स्कैटरिंग लॉस आ सकता है, क्योंकि इस वजह से लाइट का फ्लक्चुएशन ऑकर होगा ड्यू टू डेंसिटी चेंजेस। ओके, जब एक मोड से ऑप्टिकल पावर दूसरे मोड में जाएगा तब। इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट ऑप्टिकल पावर इंजेक्टेड इनटू द डोमिनेंट मोड। ये प्रोपोर्शनल रहेगा इनपुट ऑप्टिकल पावर जो हम इंजेक्ट करेंगे सोर्स से इनटू द फाइबर इनटू द डोमिनेंट मोड। लीनियर स्कैटरिंग इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, यानी लीनियर स्कैटरिंग अगेन डिवाइड होगा दो टाइप्स में, एक होता है माई स्कैटरिंग और दूसरा होता है रिले स्कैटरिंग। तो इसके ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अपन, ये हमने नोट्स में मेंशन किया है, आपको सिर्फ याद रखना है कि माई स्कैटरिंग और रिले स्कैटरिंग दो स्कैटरिंग लीनियर स्कैटरिंग के टाइप्स होते हैं। Second types of scattering loss is non-linear scattering loss. This non-linear scattering loss in a fiber also occurs due to fiber non-linearity. That is, if the optical power at the output of the fiber does not change proportionality with the power change in the input of the fiber. मतलब non-linear scattering क्या होगा? अगर इनपुट पावर और आउटपुट में जो पावर मिलेगा अपने को वो प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, तो इस वजह से नॉन लिनियरिटी आएगी, और उसी को हम बोल सकते हैं कि ये नॉन लिनियर स्कैटरिंग लॉस है। दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन द नॉन लिनियर मोड। ऑप्टिकल फाइबर इज, हम बोल सकते हैं कि वो अभी नॉन लिनियर मोड में चले गए हैं, क्योंकि इनपुट से जो पावर दिया हमने वो और आउटपुट पावर ये प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी जैसे प्रोपोर्शनल मतलब हम इनपुट पावर सपोज मान लीजिए कि 10 मिलीवैट है और आउटपुट में भी अपने को कितना मिलना चाहिए? 10 मिलीवैट। क्यों? क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल के आधार पे सिग्नल लाइट के फॉर्म में सेंड कर रहे हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जितना पावर हम इनपुट में देंगे उतना ही आउटपुट में मिलना चाहिए विदाउट एनी लॉस। अगर नहीं होता है दैट मीन्स इट इज अ नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉस। नॉन लीनियर स्कैटरिंग इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसे लीनियर स्कैटरिंग दो इसमें माई स्कैटरिंग और रिले स्कैटरिंग में डिवाइड हुआ था, वैसे यहाँ पे भी नॉन लीनियर स्कैटरिंग भी दो इसमें डिवाइड होगा। एक होगा स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग एंड दूसरा होगा स्टिमुलेटेड ब्रिलुइंग स्कैटरिंग। तो इसके भी ज़्यादा डीप में हमें नहीं डिस्कस करना है, यू कैन जस्ट रेफर फ्रॉम द नोट्स। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द स्कैटरिंग लॉसेस। So here I summarize our today's lecture. So after completing our today's session, you all are able to explain the absorption loss in detail. Second one is explain the scattering loss in detail, and you can also describe the different types of losses which incurred during the transmission of optical fiber communication. यहाँ तक हमने दो ही
टाइप्स देखे हैं ऑप्टिकल लॉसेस के। एक एब्जॉर्प्शन लॉस जो मटेरियल और इम्परफेक्शन फाइबर कंपोजिशन की वजह से आता है, और दूसरा हमने देखा स्कैटरिंग लॉस, जो डेंसिटी या फिर ऑप्टिकल पावर एक मोड से दूसरे मोड में गया तब आता है। तो उसमें नॉन लीनियर स्कैटरिंग और लीनियर स्कैटरिंग पढ़ा हमने। तो हमने सिर्फ आज 2 लॉसेस के बारे में डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग लॉसेस के बाद। उसके अलावा भी कुछ लॉसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लाइक बेंडिंग लॉस, ठीक है, या फिर डिस्पर्शन लॉस। इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।